Lesson number 1.4, The King's Choice. I think everyone know the meaning of choice. There was once a lion who was king of the forest. He was big and strong and very fierce. एक जंगल में एक लायन रहता था. And how was he? He was big, strong and fierce. Fierce means physically strong and frightening. Which adjectives are used for lion? Big, strong and fierce. All the other animals in the forest called him king. They brought him gifts from every corner of the forest. Which animals were living in that forest? They called the lion as king. वो लायन को क्या करके पुकारते थे? क्या कहते थे? किंग बोल के पुकारते थे. But and they were bringing gift from all the corners of the forest. और वो बाकी एनिमल्स क्या करते थे? वो किंग के लिए गिफ्ट लाते थे. But the more the lion had, the more he wanted. What is the meaning of this line? What the lion had, the more he wanted. मतलब जिसको जो भी कुछ मिलता था तो वो उससे और भी ज़्यादा उसकी डिमांड रहती थी. तो मतलब जितने भी गिफ्ट जो भी कुछ उसको देते थे तो लायन को ऐसे लगता था कि मुझे और देना चाहिए, ऐसा उसको लगता था. The king must have a court, he said to himself one day. और एक दिन लायन किंग ने क्या कहा कि राजा के लिए क्या किसकी जरूरत है? एक कोर्ट की जरूरत है. कैन यू टेल मी व्हाई द किंग शुड हैव अ कोर्ट? राजा के लिए कोर्ट की जरूरत क्यों होती है? पता है तुमको? नो. देन सी, अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट. व्हाई? बिकॉज टू रन हिज किंगडम स्मूथली. अपना जो किंगडम है वो स्मूथली चलाने के लिए there all the courtiers can come together. He can delegate. He can discuss with them about the work. Every department is running smoothly or not. What are the problems of their subject? लोगों की क्या problems है? हर एक डिपार्टमेंट ठीक से चल रहा है या नहीं? इसलिए हर एक राजा को अच्छी तरह से उसका किंगडम चलाने के लिए, अपने कोर्टियर के साथ डिस्कस करने के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए कोर्ट की जरूरत है. दो ही इज अ लायन, दो ही इज अ किंग. वो लायन है, एक किंग है, तो भी अपने किंगडम के हर एक डिसीजन वो खुद ले सकता है क्या? नो. बिकॉज ही हैव टू टेक डिसीजन बाय डिस्कसिंग विद देयर कोर्टियर्स. जैसे कि अपने भी देश में अगर कोई पंत प्रधान हो, कोई भी है, कोई एक निर्णय तो अकेले तो नहीं ले सकता. हर एक दूसरे मंत्रीगणों के साथ डिस्कस करके निर्णय लिया जाता है. बाय द सेम वे द किंग ऑल्सो हैव टू डिस्कस विद देयर courtiers. So a king should have a court. Understood? Okay. So he called a fox to his side. At first to whom he called? He called to fox. You are known to be a wise and clever creature, fox, said the lion. I want you to be my advisor. At first the lion king called fox and he said, Lion, you should work as an advisor. You will be advisor of my kingdom. मेरा तो क्या होगा? Advisor होगा. Why the lion has selected or choose fox as an advisor? Because an advisor should be clever. He should be wise. He can take the decision which is correct, which is wrong. He should count क्रॉस एंड फॉल्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब पहचान के उसने डिसीजन देना है, लेना है. इसीलिए उसको राजा ने क्या कर दिया? अपना एडवाइजर चूज किया. हु वाज द एडवाइजर ऑफ लायन? फॉक्स वाज द एडवाइजर. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो. अपना सर झुका के उसने थैंक्स कहा. द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लियोपार्ड टू हिज साइड. You are known to be watchful and swift of foot, leopard. I want you to be my bodyguard. And next, he called to leopard and he chose leopard as his bodyguard. Why? Because leopard is, his observation is very keen. He can run swiftly. And he is a bodyguard, should be very quick. His observation should be very keen and he should be strong. And all these qualities he saw in leopard. So he selected leopard as an
as a bodyguard. Thank you, Your Majesty, said the leopard, bowing low. The lion then called a vulture to his side. Third time he called to vulture. Vulture is a bird. You are a bird, vulture, and can fly high. You are to be my messenger. And he selected vulture as a messenger. Why? Because he is a bird, messenger is a bird, and can fly and give messages as early as possible. So he choose vulture as a messenger. Thank you, Your Majesty, said the vulture, bowing low. The fox, the vulture, and the leopard took an oath of loyalty to the king. The king promised to give them food and protection. Then fox, vulture, and leopard, they took an oath. What is meant by oath? Oath means to take a pledge of loyalty, to take a pledge of faithfulness and respect. And in return, the king also promised them to give them food and protection. तो ये तीनों ने फॉक्स, लियोपार्ड एंड वल्चर, ये तीनों ने राजा के साथ वचनबद्ध रहने की, उसके साथ फेथफुल रहने की प्रॉमिस किया उसने राजा को, और राजा ने भी रिटर्न में उनको क्या देने का प्रॉमिस किया. इन रिटर्न द किंग विल गिव हिम प्रोटेक्शन एंड फूड. फॉर सम टाइम all went well in the court of the Lion King. The three courtiers never opposed the king. His wishes were law. Whenever he roared, they stood in awe. Whenever he took a walk, they followed him. Then all this decision was taken by the king. Everything was going on smoothly. राजा ने ये निर्णय लिया. Fox कौन था? Who was Fox? Fox was, tell me who was Fox? Fox was advisor, leopard was bodyguard, and vulture was messenger. And by this way, for some days, all was running smoothly. कुछ दिन के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था. From all these three courtiers, no one was opposing to the king. तीनों में से कोई भी राजा को अपोज नहीं करता था. And what the Lion King was saying, what he says, it was the law. और राजा जो भी कुछ बोलता था वो एक लॉ है, वो एक नियम है, ऐसे करके सब लोग फॉलो करते थे. Whenever he roared, जब वो गर्जना करता था, all these courtiers were standing up. Why? To show the respect towards their king. वो राजा के प्रति अपना रिस्पेक्ट बताने के लिए वो खड़े रहते थे. Whenever he took a walk, they followed him. And when he was going outside, he was going for a walk, then all these three were walking beside him, or they were following him. When the Lion King went hunting, they found the animals for him to kill, and after he had his meal, they left the remains for them, so they always had enough to eat. And when the Lion King was going for hunting, he went for hunting, all these three were with him. And what they were doing? They were searching an animal for killing. And the Lion King was killing the animal. And at first he was having his meal. And what was the rest of the meal? Then they were having it. For that, all these three animals were getting meal also. मतलब जब भी राजा कोई हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जाता था, तो ये तीन क्या करते थे? राजा के लिए कोई भी एनिमल ढूंढते थे. After that, the king lion was killing the animal, he was eating, having his meal, and what was the rest, और बाकी जो भी कुछ बचा है ये तीनों लोग खा लेते थे. इसी तरह से इनको भी खाना मिलता था. One day the vulture came back from a flight. Your Majesty, have you ever eaten a camel? He asked. और एक दिन ऐसे ही राजा के लिए कुछ एनिमल ढूंढने के लिए vulture बहुत दूर तक गया, because he was a bird. And he was running far. He was flying so high, so long. So one day he fly away, and he came back from his flight. And what he said? उसने राजा को क्या कहा? Your Majesty, have you ever eaten a camel? कि राजा साहब आपने कभी कैमल खाया है क्या? He asked. It is very tasty. I
एट इट वंस इन द डेजर्ट। और उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो बहुत टेस्टी रहता है। एक बार मैंने डेजर्ट में एक एनिमल, क्या है उसका नाम, कैमल, टेस्ट किया है। इट इज़ वेरी टेस्टी। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल बट ही लाइक्ड द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। राजा ने तो कभी कैमल को देखा नहीं था, लेकिन इसको उसकी जो आइडिया है, वल्चर की जो आइडिया, वो पसंद आई। व्हाई द लायन शुड नॉट एवर सीन द कैमल। लायन ने कैमल को कभी भी क्यों नहीं देखा था? व्हाई? बिकॉज लायन लिव्स इन फॉरेस्ट एंड कैमल स्टेज इन डेजर्ट, दैट्स व्हाई। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क्ड। राजा ने पूछा, लेकिन हमको कैमल कहाँ मिलेगा? देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, said vulture. I was flying over it when I saw a lone camel not far away. It looked big and fat. Then the vulture said that, vulture explained, there is a desert. It is not so far away from here. It is nearby some miles away. And there saw I a camel. यहाँ से कुछ मील की दूरी पर एक डेजर्ट है और वहाँ मैंने एक अकेला ही कैमल देखा। और वो कैसा है? इट इज़ बिग एंड फैट, तो अपने को बहुत अच्छा खाने मिलेगा, ऐसे उसने बता दिया। द लायन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइजर्स। तो लायन ने उसके एडवाइजर की ओर देखा कि ये जो वल्चर जो भी कुछ बता रहा है, जो मैसेज दिया है अपने मैसेंजर ने, क्या करे उसके बारे में। ही वॉज लुकिंग टूवर्ड्स हिज एडवाइजर फॉर एडवाइस। उसकी सलाह लेने के लिए उसकी ओर देख रहा था। They were wise and experienced. He wanted their opinion. Why? Lion wanted the opinion of his advisor because they were wise and they have more experience. That's why the lion was looking towards them for their advice. Now the fox and the leopard did not know the desert, but they did not want the vulture to seem wiser than them. So they said, since it was the vulture's idea, he should lead the way. अभी ए फॉक्स और लियोपार्ड दोनों को भी डेजर्ट पता नहीं था, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखाना चाहते थे कि नहीं वी डोंट नो, हमको पता नहीं है, ऐसा वो नहीं बताना चाहते थे। क्योंकि अगर हमने ऐसा बता दिया तो ये जो लियोपार्ड है वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट दिखेगा। वो नहीं चाहते थे कि ये हमसे स्मार्ट बने, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे, लेकिन ये इसकी आइडिया है तो ये क्या करेगा, हमको गाइड करेगा, ये हमको रास्ता बता देगा। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोर्ट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट। और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग और कैमल की हंट, हम शिकार करने के लिए ये चारों बाहर निकल पड़े। They reached the edge of the desert easily. एज मतलब किनारा या काट जिसी को बोलते हैं। तो जहाँ से डेजर्ट स्टार्ट होता है वहाँ तो कोई इजीली जा पहुँचे, बिकॉज दे वे स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकम हॉट, द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेज। लेकिन जब भी वो फॉरेस्ट के बाहर आ गए तब तक क्या हो चुका था? द सन वॉज शाइनिंग वेरी ब्राइटली, ही वॉज शोन डाउन फायर हॉट रेज, बहुत ही गर्मी हो चुकी थी। एंड नाउ ऑल दे वेयर इन द डेजर्ट। हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू। द वल्चर हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज ही वॉज फ्लाइंग हाई इन द कूल एयर। हरी अलॉन्ग ही कॉल्ड, द कैमल इज नॉट फार ऑफ। और वो ये तीनों को क्या कहता था, चलो जल्दी करो, हरी अप, कैमल ज़्यादा दूर नहीं है। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, द हॉट सैंड हैड बर्नड हिज फॉज, ही कुड गो नो फर्दर। लेकिन लायन जल्दी से चल सकता था क्या? नो, बिकॉज द हॉट सैंड वॉज बर्निंग हिज फॉज एंड he can't bear it. And then he shouted, stop. He shouted to the others. और उसने जोर से चिल्लाया कि स्टॉप, अभी ये बंद कर दो। Let us go back to the forest. I do not care to try camel meat. और उसने क्या सोचा
कि चलो अभी हम कहाँ जाएंगे, वी विल गेट बैक टू द फॉरेस्ट, आई डोंट वॉन्ट द मील ऑफ कैमल, अभी मुझे वो कैमल का मील वो खाना नहीं चाहिए, चलो अभी अपने फॉरेस्ट में चलो। द लायन किंग्स एडवाइजर्स वेर फ्राइटेंड, अभी वो घबरा गए क्योंकि एक तो राजा को खाना तो नहीं मिला, लेकिन बेकार यहाँ तक हमने उसको परेशान कर दिया, इसलिए वो घबरा गए। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम, अभी फॉरेस्ट तो इतना बहुत दूर हो गया था और अभी इतने बर्निंग सैंड में उसके राजा के पाँव जल रहे थे, तो अभी इसको वापस कैसे ले जाएंगे, ये सोच के वो घबरा गए। द लियोपार्ड वांटेड टू रन अवे, लियोपार्ड के मन में क्या विचार आया, क्या सोचे कि चलो अब मैं, ही वॉज स्विफ्ट, ही कैन रन फास्ट, तो उसके मन में ये विचार आया कि चलो मैं तो अभी जल्दी से भाग जाऊँ। द वल्चर वांटेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन, द वल्चर वांटेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन, और उसके मन में क्या विचार आया कि चलो, सिर्फ वो देखते रहता था, कौन, वल्चर, मैसेंजर। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प, लेकिन अभी तो राजा साहब को तो गुस्सा आया था, इसका नतीजा तो अच्छा नहीं होने वाला था, तो हर एक कुछ न कुछ सोच रहा था। तो फॉक्स ऐसे ही वॉज अ क्लेवर एडवाइजर, तो उसके मन में एक सोच आई और उसने क्या कहा कि वेट आई विल ब्रिंग सम हेल्प, तो उसने बोला कि रुको, मैं आप लोगों के लिए, राजा साहब के लिए कुछ मदद ले आऊँगा। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल, द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज्ड टू सी हिम एंड ही रैन अवे एंड फॉक्स सॉ द कैमल, और वो भागते भागते कुछ मदद लाने के लिए गया और उसने देखा तो वह कैमल था, और कैमल ने जब फॉक्स को देखा तो उसको बहुत सरप्राइज लगा, क्योंकि उसने भी कभी फॉक्स को नहीं देखा था, क्योंकि फॉक्स कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और कैमल तो डेजर्ट में रहता है। हरी अप फ्रेंड कैमल, सेड द फॉक्स, आवर किंग वांट्स यू एट वंस, और ऐसा ही वो चतुर था, होशियार था, तो उसने क्या कहा कि हरी अप फ्रेंड, उसने फ्रेंड करके बुलाया कैमल को, क्योंकि अभी उसको कैमल की ज़रूरत थी, इसलिए उसने फ्रेंड करके बुलाया और क्या कहा कि हमारे राजा साहब आपको मिलना चाहते हैं। यूर किंग, सेड द कैमल, हु इज दैट, तुम्हारे राजा कौन है वो, मैं तो नहीं जानता कोई राजा को। यूर किंग, सेड द किंग, हु इज दैट, डू नॉट नो एनी किंग, आई ओनली नो माई मास्टर फॉर whom आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, तो कैमल क्या कहता है कि मुझे तो कोई राजा वो कोई पता नहीं है, मैं सिर्फ हमारा जो मालिक है, जो मेरा मास्टर है, उसी को ही जानता हूँ, और उसके लिए मैं ये जो ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, कुछ सामान इधर से उधर ले जाने का। अवर किंग द लायन हैज किल्ड योर मास्टर, सेड द फॉक्स, फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर बिकॉज कैमल विल नॉट लिसन हिम, ही ओनली लिसन टू हिज मास्टर, वो सिर्फ अपनी मालिक की ही सुनता है। ये बात फॉक्स को समझ गई, तो उसने क्या कहा, झूठ बोल दिया। देखो उसने क्या कहा कि हमारा जो किंग है लायन, तो लायन ने तुम्हारे मालिक को मार दिया है। नाउ यू आर फ्री, अब तू फ्री है, नाउ यू आर फ्री एंड द लायन हैज इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग, अभी तुम्हारे मालिक को तो हमारे राजा साहब ने मार दिया है, अभी तू फ्री है और हमारे राजा ने तुझे उसके कोर्ट में रहने के लिए इनवाइट किया है। द कैमल वॉज इनोसेंट, he was not so clever as fox, he believed in the words of fox and he followed the fox, वो इतना चतुर नहीं था फॉक्स के लिए, इसलिए उसने पूरा भरोसा कर दिया उस पर और क्या कहा, वो उसके पीछे पीछे आने लगा। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. Even the lion looked pleased, in spite of his burned paws. और जब फॉक्स ने कैमल को ले आया राजा के पास, तो राजा उसको भी सरप्राइज हुआ और उसके जो पॉज बर्न हो रहे थे, वो भी बात उसकी, वो दैट वेन, उसका वो जो दुख था वो भी राजा भूल गया। The camel was presented to the king.
He agreed to serve the lion in return for a home at his court. The camel, अभी कैमल को राजा के सामने पेश कर दिया. He agreed to serve the lion in return for a home at his court. और उसने एग्री कर दिया कि कैमल क्या करेगा, राजा को अपने घर जंगल में ले चलेगा. Get on the camel's back, your majesty, said the fox. We will return home. और उसने क्या कहा कि अभी राजा साहब तुम क्या कर दो, कैमल की पीठ पर बैठ जाओ और हम वापस कहाँ चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे. The lion at once jumped onto the camel's back. Why he jumped on the camel's back? Because his paws were burning. Lion's paws were not adapted for walking into the desert. Camel can walk, but lion can't walk. His courtiers, the fox and the leopard, jumped up behind him. और उसके पीछे leopard और fox दोनों भी बैठ गए. And with the vulture flying ahead as a guide, they set off on the long journey back to the forest. And the vulture was flying, he was showing them the route, and they were traveling back to the forest. When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. और जब ये तीनों लोग जंगल आ पहुँचे, all the travelers, who were the travelers? Lion, fox, vulture and camel. All they were tired and they were hungry. The fox, the leopard and the vulture looked at the camel. See, why they were looking at the camel? अब ये सब लोग कैमल की ओर क्यों देख रहे थे? Because for what purpose they have invited the camel? They have invited the camel to hunt him and have their meal. And with their hungry eyes, they were looking towards the camel. Then they looked at each other and smiled hungry smiles. And at once they were all these three looked towards the सबसे पहले ये तीनों कैमल की ओर देख रहे थे और उसके बाद एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे क्योंकि उनको ये चलो अब इसका हो गया. They had brought the camel for the king's dinner. Now it was time for the feast. उन्होंने कैमल को किसके लिए लाया था? खाने के लिए, राजा को डिनर देने के लिए लाया था. अभी वो टाइम आ चुका था. The Lion King knew what his courtiers were thinking. He called the camel to him. अभी लायन किंग को एक बात समझ में आई कि ये अभी एक कोर्टियर है, तीनों के मन में क्या चल रहा है, ये बात उसको समझ में आई. लेकिन कैमल तो लायन तो थैंकफुल था इसके लिए क्योंकि ये जो कैमल था उसने पूरा भरोसा कर दिया था फॉक्स पर और उसने राजा की मदद की थी. किस तरह से मदद की थी? he took the lion at his home. उसने राजा को अपने घर तक पहुंचाया था. The Lion King knew what his courtiers were thinking. He called the camel to him. Friend camel, he said, and that's why to show thankfulness towards the camel, he called the camel friend camel. Friend camel, he said, I have to thank you for saving my life. You are welcome to live at my court as long as you like. I promise you my protection. अभी राजा ने कोई बात समझ में आई थी कि ये तीनों के मन में क्या बात है, ये समझ में आई. और कैमल ने तो राजा की मदद की थी, उसने उसके घर लाके पहुंचाया था, इसलिए राजा ने उसको फ्रेंड कह के बुलाया. और उसके बाद क्या कहा कि मैं आपके प्रति थैंकफुल हूँ और जितने दिन आप चाहते हैं उतने दिन आप मेरी कोर्ट में रह सकते हैं. The lions courtiers were shocked. All these three were shocked. ये तीनों को तो अभी बहुत शॉक हो गया. अरे ये राजा तो हमने तो ये कैमल को राजा के डिनर के लिए लाया है और राजा साहब तो उसके लिए थैंक्स कर रहे हैं, फ्रेंड बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि जितना दिन चाहिए आप मेरे कोर्ट में रह सकते हैं. तो अभी अपना क्या होगा, हम तो बहुत भूखे हैं. इसलिए उसको बहुत सरप्राइज हो गया. एंड दे वेर शॉक्ड क्योंकि उसको ये एक्सपेक्टेशन नहीं था राजा से कि राजा ऐसा कुछ करेगा, ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था. सो दे वेर शॉक्ड. हैड दे नॉट रिस्क्ड
their lives so that he could try camel meat. And the king wanted to let the camel live. और वो कैमल को लाने के लिए उन्होंने तीनों ने भी बहुत कष्ट उठाए थे, रिस्क ली थी, बहुत बड़ी रिस्क उठाई थी, कष्ट उठाए थे। और अभी राजा तो तैयार नहीं है, राजा को तो बोलता है कि तू जितने दिन चाहिए मेरे कोर्ट में रह सकता है। द कोर्टियर्स वेर नॉट प्लीज्ड विथ हिज डिसीजन। राजा का जो ये निर्णय था इससे उनको खुशी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो इतना कष्ट उठाया था और अभी उनको तो खाने में कुछ नहीं मिलने वाला था। That's why they were not pleased with the decision of king. Now the lion's paws were so badly burned that he could not go hunting, but that did not keep him from growing very hungry indeed. और दूसरा भी एक प्रॉब्लम था, एक खुद तो बहुत भूखे थे, बहुत खुद थके हुए थे, और दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि अभी राजा के लायन के जो पास थे वो बहुत बर्न हो गए थे, उसकी बहुत जलन हुई थी। दैट्स वाई ही विल नॉट गो फॉर हंटिंग। राजा तो शिकार के लिए नहीं जा सकता, और राजा को ज़्यादा देर तक अगर भूखा रखा तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए वो उनको बहुत बुरा लगा। फॉक्स, लियोपार्ड, वल्चर, ही शाउटेड। किंग शाउटेड टू ऑल दिस थ्री, डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। और वो क्या कहता है, उनको ऑर्डर देता है, तुमको समझता नहीं है क्या कि मैं बीमार हूँ और उससे मैं और भूखा भी हूँ, जाओ अभी मेरे लिए कुछ न कुछ खाना लेके आओ। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग। कोर्टियर्स को तो राजा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है, दे हैव टू ओबे द किंग। सो आउट दे वेंट, दैट्स वाई ऑल दिस थ्री वेंट आउटसाइड, बट दे डिड नॉट गो फॉर। लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके भाई, बिकॉज दे वेर ऑल्सो टायर्ड एंड हंग्री। दे सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस and discussed what they could do. बहुत भूखे थे, बहुत थके हुए थे, इसलिए उन्होंने भी ट्राई नहीं किया कहीं जंगल में जाए और कोई शिकार लेके आए। तो उन्होंने क्या किया, एक सेफ प्लेस ढूंढ ली, वहाँ तीनों बैठ गए, एंड दे हैव मेड सम प्लान, दे हैव डिस्कस समथिंग अबाउट। आई नो, सेड द फॉक्स आफ्टर अ व्हाइल, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। उसने क्या कहा, फॉक्स ने, चलो मैं एक आइडिया बता देता हूँ। आई शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। मैं ऐसा कुछ तो भी प्लान करता कि राजा को कैमल को खाने के लिए मजबूर करता, या राजा को वो इसका ऐसा मन तैयार कर देता कि वो किसको, कैमल को भी खा जाए। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान, दे ऑल एग्रीड, सो बैक दे वेंट टू द किंग। और उसका जो प्लान था, ऐसा ही वो चतुर एनिमल है, क्लेवर है फॉक्स, उसने वो पूरा प्लान बता दिया दूसरे दोनों को, और ऐसा कुछ प्लान बना के ऑल दिस थ्री एंटर्ड इनटू द कोर्ट। फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड। सबसे पहले आगे कौन गया, वल्चर, मैसेंजर। फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड मतलब सबसे आगे आया। योर मेजेस्टी, he said, bowing low, we have found no food, but we cannot let your majesty suffer. I am a poor creature, eat me. और वैसे they were pretending, ढोंग कर रहे थे, रियली में वो उनके मन में ऐसा नहीं था, लेकिन वो क्या बोल रहे थे, फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड। सबसे पहले वल्चर आगे आया और उसने क्या कहा, योर मेजेस्टी, ही सेड, बोइंग लो, वी हैव फाउंड नो फूड। हमने देखा लेकिन हमको कुछ फूड नहीं मिला, लेकिन हम आपको भी ज़्यादा टाइम तक भूखा नहीं रख सकते, तो ऐसा कर दो ना कि मैं तो कोई इतना इम्पोर्टेंट क्रिएचर एनिमल नहीं हूँ, तो आप मुझे ही खा लो। तो उसके मन में क्या था कि राजा साहब मुझे नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं कौन हूँ, उनका मैसेंजर हूँ। Then second time, at first who stepped down? Who stepped down first? Vulture, messenger. Second time, the fox pushed the vulture aside. They were all there pretending. It was not reality. तो अभी जब लियोपार्ड वल्चर सामने आया सबसे पहले, तो फॉक्स क्या कहते हैं, नहीं नहीं तू नहीं, राजा साहब मुझे खाएंगे। द फॉक्स पुश्ड द वल्चर असाइड। फॉक्स ने क्या कहा, उसको बाजू को ढकेल दिया। एंड व्हाट ही इज सेइंग, आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राइड, इट मी योर मेजेस्टी। और फॉक्स क्या कहता है, नहीं नहीं,
तुझसे ज़्यादा मेरे बॉडी पर ज़्यादा मीट है, तो मुझे ही खा लो। नाउ द लियोपार्ड रश्ड फॉरवर्ड। और अभी तीसरे बार कौन आया? लियोपार्ड आया। एंड व्हाट ही इज सेइंग, आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द क्वीन। मैं इतना भी कोई अच्छा एनिमल नहीं हूँ, लेकिन मैं राजा साहब के लिए खाना तो दे सकता हूँ। द कैमल लिसन टू ऑल दिस ऑफर्स। तो कैमल ने तीनों का ये जो कन्वर्सेशन है, जो ऑफर है, वो सुन ली और उसको लगा देखो ये तीनों भी अगर अपनी जान देने को तैयार है राजा साहब के खाने के लिए, तो मैं क्यों न दूँ? बिकॉज ही वॉज सो इनोसेंट, ही वॉज नॉट सो स्मार्ट, नॉट सो क्लेवर। द कैमल लिसन टू ऑल दिस ऑफर्स। कैमल ने ये तीनों भी ऑफर्स सुन लिए और उसने क्या कहा, ही मस्ट डू एज मच ही थॉट। तो मैं भी ऐसा क्यों नहीं करूँ, ऐसा उसके मन में आया। यूर मेजेस्टी, ही सेड, I too am willing to give my life for you. Please eat me instead of these old friends of yours who will be more useful than me. And what he said, उसने वो सबका ये करा। He don't know that these three creatures are pretending. ये सब नाटक कर रहे हैं, उसको पता नहीं था। इसलिए उसने क्या कहा कि ये तो तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स हैं राजा साहब, तो इससे बेहतर है कि आप मुझे ही खा लो। This was what the fox, the leopard and the vulture was waiting for. और ये तीनों, ए फॉक्स, लियोपार्ड और वल्चर, इसी बात के वेट कर रहे थे। और कैमल ने ऐसा कुछ करना है, इसके लिए तो उन्होंने ये सब कुछ किया था। They prepared to jump at the camel, but the lion stopped them. और अभी ये तीनों लायन को मारने के लिए ही तैयार थे, जंप करने के लिए, लेकिन राजा ने उनको रोक दिया। You are all good and loyal subjects, he said. My heart is touched by your offers. I accept them all. I shall eat you in order in which you offer yourselves. और राजा क्या कहता है कि तुम सब बहुत अच्छे लोग हो, चारों ही, तो मैं आप सब लोगों की ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। लेकिन किस तरीके से मैं स्वीकार करता हूँ? जिस ऑर्डर से तुमने मुझे ऑफर दी है, according to your offer, according to the order, I will accept. What was the order? Who was the first one? Vulture was the first one, fox was second, leopard was third, and camel was last. And the vulture, the fox and the leopard were shocked. और जब राजा ने ऐसा कहा, all these three were shocked because they have confidence that king will not eat us, he will not kill us. Away flew the vulture, and when they listened it, at first the vulture flew away. Away ran the fox and the leopard. Fox and the leopard also ran away because they were pretending, they were not giving the offer heartily. The lion laughed to see them go. Then he turned to the camel and said, you have been loyal and good. You shall be my friend as long as we are alive. And when all these three old friends ran away, the lion turned towards the camel and he said to the camel, you are loyal, you are true friend, you are loyal and good. You shall be my friend as long as we are alive. और तू ही मेरा फ्रेंड रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो कैमल बहुत खुश हो गया और वो बहुत थैंक्स करने लगा राजा को। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। और इसके बाद राजा ने खुद को क्या कहा कि एक राजा होना तो ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन राजा से भी बेटर कौन सी बात है? तो किसी के प्रति दया होना, किसी के प्रति सहानुभूति होना, दया होना, काइंडनेस बताना, इट इज बेटर देन बीइंग अ किंग। अंडरस्टूड? मीन्स all these three were true friends of the king? No, they were not true friends of the king. Okay.